Now, in this lecture, we will study about how the data streams are mined. You know, data, the stream data is mined actually, and it is the starting unit of unit third. Okay, let's visit first of all. Let's visit where the unit third is. It's the unit third. In the unit third, where we are going for the mining data streams, we get introduction to streams concepts, stream data model, and architecture. Introduction to stream concepts, stream data model and architecture, stream computation, sampling data into stream, filtering streams, counting distinct element in a stream, estimating movements, counting oneness in a window, and decaying window. Now, this is a concept of actually a concept of data mining, and for this, we have a data mining. We have our book Camber for this. So for this, we will use this slide where it is taking which is has taken the support from a book Jivan Hahn and Michael Campbell. It is a Bible of data mining. ये जान लीजिए ये बाइबल है डेटा माइनिंग. It is like a Bible in data mining. कैसे डेटा माइनिंग चलता है. Now what is stream data? Stream data होता क्या है? स्ट्रीम डेटा और डीबीएमएस में पहले अंतर समझते हैं. आप डीबीएमएस पढ़े होंगे, आप डीबीएमएस अच्छे से जानते होंगे एग्जैक्टली चीजें कैसे चलती हैं. ठीक है. तो डीबीएमएस और डेटा स्ट्रीम में क्या होता है. पहली बात, ट्रेडिशनल डीबीएमएस जो है वो फाइनाइट पर्पस ऑफ परसिस्टेंट डेटा सेट्स को यूज करता था, बिकॉज एक उसका मेमोरी बेस्ड होता था, मेमोरी पे डिपेंडेंट चीजों को यूज करता था. डेटा स्ट्रीम में क्या ये कंटिन्यूअसली आ रहा है. जैसे यूट्यूब पे डेटा एकदम चढ़ रहा है, लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, ऑर्डर्ड है और ये बहुत चेंजिंग है, बहुत फास्ट है और इसका बहुत बड़ा अमाउंट है. ठीक है. ठीक है. ठीक है ना. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहली बात, स्ट्रीम डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक है. सी आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ this from Professor. This slide belongs to Professor Pere Luga Lange. I'm taking a help of this thing because I'm still I believe I'm a learner. I find this slide very much organized. That's why I'm using it. Thanks to this. What is the characteristics of that data strip? Huge volumes of the continuous data, possibly infinite. Fast changing and requires fast real-time response. Data stream captures nicely our data processing needs of today. Data streams capture nicely our data processing needs of today. Random access is expensive. Random access is expensive. Random access is expensive. What is this for meaning? We can only understand when we go through single scanning body. Store only the summary of the data seen thus far. Most stream data are at pretty low level or multidimensional in nature. Needs multi-level and multi-dimensional processes. What are the applications of this stream concept? Stream data concept. We use it in a telecommunication calling records. We use it in a business credit card transaction flow. We use it in a network monitor and traffic engineering. We use it in a finance market, stock exchange. We use it in engineering and industrial processes, where we look for the power supply and manufacturing. We use it in a sensor monitor and surveillance video streams, RFID, security.
use weblogs and web page click streams. Massive data sets have been saved, but random access is too expensive. What is difference between DBMS versus data stream management system? First of all, DBMS is persistent, DSMS is transient. DBMS is one-time query system, it is a continuous query system. DBMS is a random access, it is a sequential access. DBMS is unbounded storage, stored here, it is a bounded main memory. Only current state matters, historical data is important. No real-time service, real-time requirements. Relatively low update rate, here it is a possibly multi-GB arrival. Data at any granularity, data at fine granularity. As in precise data, data is scaled by imprecise. Access plan determined by query processor physical degree design. Here it is unpredictable variable data, arrival and characteristics. How the concept of the streaming works. Here it is the diagram. Stream data management system has a user and application which is continuously querying with the stream query processor, which the stream query processor is getting a multiple stream from the various side, and the result has been sent to the user. And with the help of that stream query processor, we are putting that data into scratch memory, main memory, or disk. What are the challenges in stream data processing? Here are the challenges are many. It is a very multiple. We are getting data from the multiple ways. It is continuous. It is rapid. It is time varying ordered streams. Okay. Next is main memory computation. Main memory computation. So evaluating continuously as stream data arrives, answer definited over time. Now, take an example. Let's assume I stream my lecture through the YouTube. Okay. I stream my lecture on YouTube and YouTube is joined. Somebody has joined as a different minutes to say a processing to the system, processing power of the system need to be so strong. Keep whatever time you are going to join here, sir, you get the data in that. तो that's what वहाँ पे जो example है ना वो उधर जो लिखा हुआ है multiple continuous rapid time varying order stream. मल्टीपल लोग कभी भी किसी टाइम वेरिंग टाइम में आ सकते हैं और आपने कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम डाल दिया तो आपका जो सिस्टम है ये जो आपका स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसर है आपको वहीं से डेटा स्ट्रीम का आपको वहीं से डेटा स्ट्रीम की फैसिलिटी को दे दो. ठीक है तो आपका होता है मेन मेमोरी कंप्यूटेशन. तो अब मेन मेमोरी कंप्यूटेशन इंपॉर्टेंट सदस्य होता है कि भाई इतने सारे रिक्वेस्ट में एक साथ वो सर्वर पूरा कर रहा है तो वो जो रिक्वेस्ट है तो जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे पूरा किया जाए. तो सबसे पहले वो इवैल्यूएट करेगा हमेशा जो जो स्ट्रीम अवॉइड आ रही है और आंसर्स जो है वो अपडेट करता रहेगा टाइम के साथ. कहने का मतलब ये है कि जो क्वेरीज आएंगी अलग अलग लोगों से वो क्वेरीज जो है वो सामने वाले को बताती है क्या सीन चल रहा है. क्वेरीज आर ऑफन कॉम्प्लेक्स. क्वेरीज जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है. क्यों क्यों beyond the limit at a time processing के साथ beyond the stream at a time processing वो एलिमेंट के साथ भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होती है स्ट्रीम के साथ भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होती है रास्टर क्वेरीज होती है संस्कृत डेटा माइनिंग और ओलैप की चीज़ों को मैनेज करता है. ओलैप क्या होता है? व्हाट इज ओलैप? ओलैप इज समथिंग व्हिच इज नोन एज द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ओके सो ऑनलाइन जो डेटा जाता है उसकी एनालिटिकल प्रोसेसिंग करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं ओलैप. ठीक है तो और क्या होता है? और होता है मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशन प्रोसेसिंग व्हिच इज डेटा माइनिंग. Okay. Most stream data are at low level or multi-dimensional. प्रोसेसिंग स्ट्रीम में क्वेरी किस टाइप से होती है भाई समझ लिया.
प्रोसेसिंग स्ट्रीम में क्वेरी किस टाइप से होती है? प्रोसेसिंग स्ट्रीम में क्वेरी टाइप वन टाइम क्वेरी भी नहीं होती है, यहाँ पे ना कंटिन्यूअस क्वेरी होती है। मैंने अलग अलग टाइम पे यूट्यूब को ज्वाइन किया है, आपके मेरे लेक्चर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे ज्वाइन किया है कि उसी फील्ड को ना बार बार लोग टच कर रहे हैं, बार बार लोग रिकॉर्ड मांग रहे हैं। पूरा बात वही है ना, प्री डिफाइंड। इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड क्वेरीज होते हैं वर्सेस एड हॉक क्वेरीज होती है। प्री डिफाइंड क्वेरीज वर्सेस एड हॉक क्वेरीज होती है। तो प्री डिफाइंड क्वेरीज में ये होता है कि भाई आप जैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, load कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को रैंडम तरीके से उसको फिट करते हैं। ऑनलाइन जो है इशू कर सकते हैं और सिस्टम की चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। फिर आता है कि अनबाउंड मेमोरी रिक्वायरमेंट होता ही है कि भाई आप यूट्यूब का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे अनबाउंड तरीके से मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और रियल टाइम रिस्पॉन्स में मैंने ऑप्शन शुड बी यूज्ड, लेकिन रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वर भले भले जो है आप डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और डेटा अलग अलग जगहों पर रखा है, लेकिन क्वेरी तो एक सिंगल आदमी किसी एक लोकेशन से करना है ना, तो ऐसे रिस्पॉन्ड करना है तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी से अपने आप को दूर रखें। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी से अपने आप को दूर रखें, दैट्स इट। अब नेक्स्ट चीज होता है अप्रोक्सीमेट क्वेरी आंसरिंग। The bounded memory it is not always possible to produce exact answers. High quality approximation answers are desired. Data reduction and synopsis construction methods like sketches, random sampling, histogram, reference, extra use. ये आपको तब समझ में आएगा जब इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। तो डेटा स्ट्रीमिंग की मेथडोलॉजी क्या होती है? सबसे पहली बात क्या होता है कि हमको ये किस आईपी से कौन सा रिक्वायरमेंट आएगी, इस बात का हमको पता नहीं होता, क्योंकि हम इंटरनेट पे नेटवर्क के सिद्धांत पे जो हम सिस्टम है उसका एज अ क्वेरी लेता है। सिस्टम को कैसे लेता है, एज अ क्वेरी लेता है। तो किस पेयर जो आईपी है वो किस पेयर से चीजों को चलेगा, ये आप नहीं जानते। आईपी जो है किस पेयर से चीजें चलेगा ये आप नहीं जानते। तो वो पेयर, अब इतना लार्ज यूनिवर्स है, कहाँ से किस आईपी से रिक्वायरमेंट आएगी इसको मैनेज करना भी एक टफ काम है। यूट्यूब में आपने डेटा स्ट्रीम किया, कोई यूएस में मान लीजिए उसको पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, तो इसको मैनेज करना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि यूएस में से हमने यहाँ से इंडिया से स्ट्रीम कर दिया सब पढ़ लें। बैकएंड में क्या चल रहा है कोई सोच रहा है क्या? बैकएंड में वो डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कोई इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है क्या? उसकी जो मेथडोलॉजी होती है उसको हमको एक सिनेप्सिस मैनेज करना पड़ता है। तो सिनेप्सिस ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि वो एक ट्रेड ऑफ क्रिएट करे एक्यूरेसी और स्टोरेज का। कहाँ हमको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, कहाँ पे हमको स्टोरेज करना है। फिर आप आइए, हम सिनेप्सिस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं जहाँ पे वो एक कॉम्प्लेक्सिटी डायमेंशन लेता है ओ लॉग फॉर के और एम, ठीक है। और उसका बेस होता है ओ एन स्पेस, जहाँ पर कंप्यूट करते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर्स within a small error range factor and actual answer.
मेजर मेथड्स क्या होते हैं इसमें? मेजर मेथड्स होते हैं जो इस चीज को हमको अच्छे से मैनेज करके दिखाते हैं। वो होते हैं हिस्टोग्राफ्स, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक एक्चुअली होती है, मल्टी रिजोल्यूशन मॉडल होता है, मल्टी रिजोल्यूशन मॉडल, स्केचेस और रेंडमाइज होगा। क्या होता है रेंडमाइज? तो अब देखना है कि ये जो टेक्निक्स है उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में करती है। टेक्निक एक्चुअली में क्या करती है? तो ये टेक्निक एक्चुअली में क्या करते हैं? सबसे पहले होता है रैंडम, बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग वाला। हमको ये पता नहीं है कि मेरी जो यूट्यूब की लेक्चर है वो कितनी देर चलेगी। तो हमको इस बात का पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब का लेक्चर कितने देर चलेगा, तो हमारा जो सिस्टम उसको कैसे मैनेज करते हैं? हमें वो क्या करेगा, रिजर्वायर रखा जाएगा कि इस कैंडिडेट के लिए इतना रिजर्वायर रखो, इतना लंबा चल सकता है। तो इसमें रिजर्वायर सैंपलिंग में क्या होता है, मेंटेन अ सेट ऑफ एस कैंडिडेट इन द रिजर्वायर व्हिच फॉर्म अ टू रैंडम सैंपल at the each element seen so far in the stream. As the data stream flow, every new element has a certain probability of replacing an old element in the reservoir. इस पर्टिकुलर चीज को हम ध्यान देते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है स्लाइडिंग विंडो, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन रीसेंट डेटा ऑफ स्लाइडिंग विंडो साइज। एन एलिमेंट अराइविंग एट टाइम t expires at time t, which is t plus term. अब एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज हिस्टोग्राम। हम यहाँ पे क्या करते हैं, here we approximate the frequency distribution of element values in a stream, but stream data, partition data into a set of continuous buckets, equal width, equal value range for buckets, best the optimal minimizing frequency variance within each bucket is taken care. Multi-resolution models, popular models like balanced binary trees, microcluster and wavelets are used. तो स्ट्रीम डेटा प्रोसेसिंग मेथड में होता क्या है, स्केचेस होते हैं। तो स्केचेस में क्या होता है, हिस्टोग्राम और वेवलेट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड मल्टी पासेज ओवर द डेटा, बट स्केचेस कैन ऑपरेट इन द सिंगल पास। तो स्केचेस के साथ सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है कि ये सिंगल पास में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए n n नंबर ऑफ ELTS वी वैल्यू है, तो स्केचेस की जो वैल्यू है F0 F1 F2 की होगी, उसके जो स्पेस, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है लो ओ लॉग बी प्लस लॉग एन स्पेस। रेंडमाइज एल्गोरिथम के भी ऐसे ही हमारा मोंटे कार्लो रेंडमाइज एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे मोंटे कार्लो एल्गोरिथम, शेमिशेव एल्गोरिथम, कर्नॉफ एल्गोरिथम। तो इन सब में भी हम चीज़ों को अपने स्ट्रीमिंग डेटा के कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो मोंटे कार्लो एल्गोरिथम फाउंड ऑन रन टाइम बट मे नॉट रिटर्न करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही होता है शेफ इनइक्वालिटी, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद मीन q स्टैंडर्ड डेविएशन। Okay, p mod x minus mu greater than k is less than equal to the square by k square, sigma square by k square. सम ऑफ बाउंड क्या होता है, सम ऑफ बाउंड का मतलब ये होता है कि लेट x be the sum of the independent Poisson trials x1 comma dot xn। तो सिग्मा इन 0 comma 1, 0 को छोड़ते हुए 1 को लेते हुए जो हम डेटा लेते हैं तो हम कहते हैं सम ऑफ बाउंड। इसमें जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे हम मीन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए, इसका डिटेल वर्जन सभी आएगा। अभी समझाने के लिए कि स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता है। स्लाइडिंग विंडोज में क्या होता है, इसमें क्या होता है स्लाइडिंग विंडो में कि हम
रिसेंट स्ट्रीम जो होगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं जो स्ट्रीम चल रही है, अप्रोक्सीमेशन होता है यहाँ पे। और इसके लिए हम डिजायरेबल एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो ये आइडिया होता है कि अगर ये इंसान स्ट्रीम करेगा तो कितनी देर की स्ट्रीम करेगा। तीन तरीके की स्ट्रीम्स होते हैं हमारी प्रोसेसिंग पावर्स होती है, जैसे बैच प्रोसेसिंग, सैम्पलिंग एंड सिनॉप्सिस। बैच में क्या होता है, इफ अपडेट इज फास्ट बट कंप्यूटिंग इज स्लो, देन कंप्यूट क्रिटिकली नॉट वेरी टाइम। ऐसी दूसरी चीज होती है सैम्पलिंग, if update is slow but computing is fast, complete sample data was not good for grants। ऐसे तीसरा होता है synopsis data structure, maintain a small synopsis or sketch of data good for querying historical data। ये सब चीजें होती हैं। ब्लॉकिंग ऑपरेटर या फिर शॉर्टिंग, एवरेज, मिनिमम एक्सेट्रा। ब्लॉकिंग में क्या होता है, if unable to remove the first output and seeing the entire picture। तो बहुत सारे स्ट्रीमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं अभी मार्केट में। स्ट्रीम स्टैंडफोर्ड का प्रोजेक्ट है, जनरल पर्पस बीएसएनएस है, फॉगर है जो सेंसर्स को कलेक्ट करता है, ऑरोरा है जो सेंसर मॉनिटर करता है, डेटा फ्लो करते हैं एमआईटी का, हैंकॉक है जो टेलीकॉम स्ट्रीमिंग को मैनेज करता है, नाइजीरिया है, नाइग्रा है जो इंटरनेट एक्सटर्नल डेटाबेसेस को मैनेज करता है, ओपन सीक्यू है जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी का जो ट्रिगर्स मेंटेनेंस करता है, टैपेस्ट्री है ज़ेरॉक्स का जो सब कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग करता है, टेलीग्राफ है बर्कले का जो अडैप्टिव इंजन के सेंसर से डेटा लेता है, टेडबॉट है जो स्टॉक पिकर्स और स्ट्रीम को मैनेज करते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं। ओके, ऐसे ही आपके नेड है जो यूआईयूसी और एनसीएस से माइनिंग एल्गोरिथम सीक्वेंसिंग डेटा स्ट्रीम को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्ट्रीम डेटा के माइनिंग और क्वेरिंग में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम डेटा की माइनिंग। तो आप थोड़ा सा हम अपना कोर्स देखते हैं, शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो कोर्स देखिए, यूनिट 3 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, फिर क्या है डेटा स्ट्रीम डेटा मॉडल, इसके बारे में डिस्कस किया, उसका आर्किटेक्चर पता है, स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या होती है, सैम्पलिंग डेटा इन स्ट्रीम क्या होता है, तो फिल्टरिंग कैसे की जाती है, काउंटिंग कैसे की जाती है, स्ट्रीम की एस्टिमेशन की मॉडल कैसे बनाते हैं, काउंटिंग नंबर्स डेटा विंडो विंडो कॉन्टेक्स्ट से विंडो डिलिंग विंडो। तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर रियल टाइम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स कैसे चल रहे हैं इसके बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी पहले स्लाइड को देख लेंगे तो और अच्छे से हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्ट्रीम माइनिंग और स्ट्रीम डेटा डेटा माइनिंग टास्क में क्या अंतर होता है, देखिए स्ट्रीम माइनिंग जो है मोर चैलेंजिंग टास्क है many cases when it shares most of the difficulties with stream querying, but often requires less precision. Example, no join, grouping, sorting. Patterns are hidden and more general than querying. Patterns are hidden and more general than querying. It may require exploratory analysis, but not necessarily continuous queries. Exploratory analysis हमारे रियल टाइम सिस्टम में होती ही है। फिर आता है डेटा स्ट्रीम डेटा माइनिंग के टास्क क्या होते हैं। स्ट्रीम माइनिंग तो ये होता है कि भाई जो हमने भी आपको बताया, तो मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिसिस को और मल्टी डायमेंशनल डेटा को ऑनलाइन एनालिसिस करने को क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। माइनिंग आउटलायर्स एंड अनयूजुअल पैटर्न इन स्ट्रीम डेटा, माइनिंग करना आउटलायर्स को उसके अनयूजुअल पैटर्न को ट्रैक करते हैं, स्ट्रीम डेटा। क्लस्टरिंग डेटा स्ट्रीम, हम क्लस्टर्स करते हैं डेटा स्ट्रीम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम डेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रीम डेटा। नाउ what are the challenges for mining डायनामिक्स ऑफ डेटा स्ट्रीम, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब डेटा स्ट्रीम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मोस्ट डेटा स्ट्रीम्स आर प्रीटी लो और मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, नीड एमएल बाय एमडी प्रोसेसिंग। फिर आइए एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल ट्रेंड्स एंड unusual patterns, capturing important changes at multi dimensional levels, fast real time detection and responses, comparing with data to similarity and differences। okay. यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रीम डेटा का एक क्यूब बनाते हैं और उसको स्ट्रीम करते हैं, वो लैप की तरह फिजिकल है, उसको फिर इसमें इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं।
अगर हम ओलैप की बात कर रहे हैं और डेटा क्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रीम है, ये डेटा माइनिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रीम डेटा जो है हमको बिग डेटा में भी समझना होगा, तब हम एक बैलेंस स्ट्रेटजी समझ पाएंगे कि डेटा माइनिंग और डेटा स्ट्रीम, डेटा बिग डेटा में जो स्ट्रीम का स्ट्रक्चरिंग और किस काम की जरूरत है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए। डिफरेंसेस फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है। अब देखिए, कुछ वेबफ्लिक्स होती है जिनके नाम जिसके थ्रू हम चीज़ों को मैसेज करते हैं, वो भी आपके स्ट्रीम डेटा में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रॉ डेटा एट लो लेवल, seconds per page addresses, user IP addresses, and this one changes trends and user patterns as a reasonable level of details. Average clicking traffic in North America on sports in the last 15 minutes is 40% higher than in the last 24 hours. तो ये इतना बारीक एनालिसिस भी हम कभी कर पाते हैं जब हमें डेटा का रिकॉर्ड होता है। डेटा का रिकॉर्ड को हम मैनेज कर सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ पावर कंजम्पशन स्ट्रीम, तो रॉ डेटा क्या है कि फॉर पावर कंजम्पशन फॉर एवरी हाउसहोल्ड एवरी मिनट, पैटर्न वन में फाइंड इज average hourly power consumption surge of 30% for manufacturing companies in Chicago in the last 2 hours than that of the same day in a week. तो अब ये जो पूरा फॉर्मुलेशन आ रहा है कि मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल चीजों को, डेटा को हैंडल करने के लिए वो एक्चुअली फॉर्म ऑफ क्यूब, एज यू नो, बात करते हैं। अब क्यूब को जैसे एक डेटा है, क्यूब कैसे बनेगा उस डेटा का, तो हम डिफरेंट टाइम ग्रैन्युलरिटीज में उसको ले जाते हैं, लाइक सेकेंड, मिनट, क्वार्टर, आवर, डे, वीक, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ों को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे हमारा क्रिटिकल लेयर्स होते हैं, मिनिमम इंटरेस्ट लेयर होता है, एम लेयर, ऑब्जर्वेशन लेयर, ओ लेयर, इसका watches at O layer and occasionally needs to drill down to the M layer. Watches at the O layer and occasionally drill down to the M layer. ऐसे क्या है कि हम पार्शियल मेटलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं टू स्पेस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये पार्शियल मेटलाइजेशन स्ट्रीम यूज होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है और टाइम कंज्यूम होती है। नो मेटलाइजेशन, स्लो रिस्पॉन्स होता है कभी कभी क्वेरी टाइम में। पार्शियल मेटलाइजेशन मतलब कि भैया एक मिड ऑफ द चीज होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो किस हिसाब से हम टाइम फ्रेम को नेचुरली ट्रीट करके देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि नेचुरल ट्रेंड टाइम फ्रेम होता क्या है। जैसे मिनिमम में क्वार्टर, फिर फोर क्वार्टर, 1 आवर 24 आवर्स, तो ये इस हिसाब से टाइम की डिनोशन हमको शो कर सकते हैं, 12 मंथ, 21 डेज, 24 आवर्स, फोर क्वार्टर्स। ऐसे लॉगरिथम पीरियड टाइम फ्रेम भी हो सकता है, जैसे 1 मिनट, 1 2 4 8 16 32 सेकंड्स, तो 64 टाइम 32 टी 16 टी, इस हिसाब से हम अपने टाइम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास शो करने के लिए पिरामिडल पीरियड टाइम फ्रेम्स भी होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए 5 फ्रेम में सबको 3 3 स्नैपशॉट लेने हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 फ्रेम डिफाइन कर दिया, सबको 3 3 स्नैपशॉट। एम मॉड 2 0 होना चाहिए, तो इंसर्ट इनटू फ्रेम नंबर डी, देयर आर मोर देन 3 स्नैपशॉट्स विदाउट द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नंबर क्या करते हैं बाहर करते हैं। इस हिसाब से हम थोड़ा सा 2 लेयर स्ट्रीम क्यूब बनाते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीम डेटा लेयर लेते हैं, यूजर सेकंड ऊपर जाते हैं, यूजर ग्रुप को, डेटा को एम लेयर में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं ओ लेयर ऑब्जर्वेशन में, हम थीम और क्वार्टर्स में डेटा को तोड़ते हैं। तो
ऑनलाइन पार्सल मेटलाइजेशन और ओवरलैप प्रोसेसिंग में काम करते हैं। ऑनलाइन मेटलाइजेशन जो करते हैं हम डेटा स्ट्रीम को, तो ऑनलाइन मेटलाइजेशन में सबसे पहले देखते हैं कि हमारा स्पेस और टाइम दोनों का एक बैलेंस बनाना होता है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी क्वेरी को जल्दी आंसर करने के चक्कर में डबल स्पेस लें। तो एक पीरियड टाइम फ्रेम में हमको अपने आंसर को देना होता है, उससे एक लिमिटेशन सेट करके तो चीज़ों को आगे चीज़ों के आगे की डिज़ाइन आगे की डिज़ाइन हम शो करते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियलाइज के वो कीवर्ड्स है वो क्रिटिकल है। ऑनलाइन कंप्यूटिंग में टेक टू मस्ट है, तो जो ऑनलाइन कंप्यूटिंग है वो शायद बहुत ज़्यादा समय लेती है। यहाँ पे क्या होगा, हमको पॉपुलर का सॉल्यूशन करना होगा। तो जब पॉपुलर एक होता है एच ट्री स्ट्रक्चर। Such keywords can be computed and stored efficiently using the H-tree structure. फिर आता है जी ऑनलाइन एग्रीगेशन वर्सेस क्वेरी बेस्ड कंप्यूटेशन। ऑनलाइन कंप्यूटिंग वाली स्ट्रीम इज लाइक एग्रीगेटिंग स्ट्रीम क्यू। ऐसी क्वेरी बेस्ड कंप्यूटेशन मतलब यूजिंग कंप्यूटेड कीवर्ड्स, और वो जब हम कंप्यूट करते हैं उस हिसाब से हमारे कीवर्ड्स बनते हैं और प्रोसेसिंग लेयर में लेते हैं। और उसके बाद हम जैसे ये मिनिमल लेयर है, ये केमिकल और कम वीडियो हो सकता है कि स्ट्रिंग्स हैं, कीबोर्ड स्ट्रिंग्स है डॉट कॉम डॉट वीडियो कहाँ से शिकागो में उसमें भी एक रूट लेयर होता है, एक ऑब्जर्वेशन लेयर होता है, फिर हम इलेक्ट्रिकल केमिकल चीज़ों को देखते हैं, कितने समय में देखते हैं, ये सब चीज़ों को हम एच की स्ट्रक्चरिंग में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एच ट्री या एच क्यूब का क्या फ़ायदा होता है, डेवलप करते हैं डेटा क्यूब्स को एज वर्ड क्यूब्स को फास्ट क्यूब बनते हैं। और इसमें स्ट्रीम में जब हम करते हैं तो स्पेस कम लगता है, फैसिलिटेट कर पाते हैं मल्टी डायमेंशनल। इसके आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्रीक्वेंट पैटर्न्स कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्चुअली में डेटा स्ट्रीम होता क्या है, वो आपको थोड़ा सा समझ में आइडिया लगा, आगे पढ़ाएंगे।